बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आज मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो व्हाट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़, दिस इज़ द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल and what is the external manifestation? This is the regular vaginal bleeding, and this occurs as a result of shedding of the endometrial lining following the failure of fertilization of the oocyte or failure of implantation. So that's why the menstruation is called the tears of the uterus. The cycle depends on the changes occurring after puberty within the ovaries and the fluctuation in the ovarian hormones. So this is all about the HPO axis. ठीक है. In situations of disorders of sex development or hormonal abnormalities, menstruation may not begin. अगर कोई प्रॉब्लम होगा, डिसऑर्डर्स हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो ओवरऑल जो आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी समझनी है, दिस इज़ HPO एक्सेस. H हाइपोथैलेमस, P पिट्यूटरी, O ओवेरियन. ठीक है. तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस को देखते हैं. हाइपोथैलेमस इन द फोरबेन्स क्रिएट्स पेप्टाइड हार्मोन, gonadotropin releasing hormone, ठीक है, which in turn controls the pituitary hormone secretion. Gonadotropin releasing hormone must be released in a pulsatile fashion to stimulate the pituitary secretion of luteinizing hormone and the follicular stimulating hormone. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक तो हाइपोथैलेमस से क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है, GnRH, और किस तरह से रिलीज़ हो रही है, पल्सटाइल फैशन में. ठीक है. तभी ये प्रॉपरली स्टिमुलेट करेगी पिट्यूटरी सिक्रेशन ऑफ gonadotropins को. That are, what the gonadotropins are? Luteinizing hormone and the follicle stimulating hormone. Now next, the pituitary gland. GnRH stimulate the basophil cells in the anterior pituitary gland. You know the pituitary gland consists of anterior part and the posterior part. So the basophil cells are present in the anterior pituitary gland and causes synthesis and the release of gonadotrophic hormones like FSH and LH. This process is modulated by the ovarian sex steroid hormones, which are estrogen and progesterone. Low levels of the estrogen have an inhibitory effect on the LH production. नेगेटिव फीडबैक है. ठीक है. अगर एस्ट्रोजन कम होगा तो वो इनहिबिट करेगा LH प्रोडक्शन को. तो वेयर एज द हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन विल इंक्रीज LH प्रोडक्शन, जिसे हम कह रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द पॉजिटिव फीडबैक अफेक्ट द एस्ट्रोजन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन GnRH रिसेप्टर कंसनट्रेशन. तो कैसे एस्ट्रोजन जो है वो उसको बढ़ा रहा है, क्योंकि ये GnRH के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा है. तो जब GnRH के रिसेप्टर पिट्यूटरी के ऊपर बढ़ाएगा एस्ट्रोजन, तो फाइनली क्या होगा, पिट्यूटरी LH ज़्यादा रिलीज़ करेगा. ठीक है. While the mechanism of the negative feedback is uncertain, the high levels of the circulating estrogen in the late follicular phase of the ovary act via the positive feedback mechanism to generate a peri-ovulatory LH surge from the pituitary. So high जो LH surge आ रही है for the ovulation, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है? जो इंक्रीज लेवल्स हैं एस्ट्रोजन के, वो GnRH के रिसेप्टर्स को पिट्यूटरी के ऊपर बढ़ा रहे हैं और वो फाइनली क्या रिलीज़ कर रहा है, LH. So the clinical relevance of these mechanisms is seen in the use of combined hormonal oral contraceptive pills, which artificially creates a constant serum estrogen level in the negative feedback range. तो वो क्या करते हैं, जो हार्मोन्स हैं COCP के, ये नेगेटिव फीडबैक रेंज के अंदर एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, LH सर्ज नहीं आती. ठीक है. तो इंड्यूसिंग अ कॉरेस्पॉन्डिंगली लो लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज. ठीक है. तो फाइनली क्या होगा कि हार्मोन भी रिलीज़ नहीं होंगे. तो हमने क्या पढ़ा अब तक कि लो एस्ट्रोजन लो गोनाडोट्रोपिन्स, हाई एस्ट्रोजन हाई गोनाडोट्रोपिन्स. ठीक है. और COCP का क्या फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि COCP का क्या फंक्शन है कि वो जो लो लेवल है एस्ट्रोजन का, उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करके रखता है ताकि LH सर्ज ना आ सके. ठीक है. और नेगेटिव फीडबैक रहे गोनाडोट्रोपिन्स के ऊपर. ओके. अनलाइक एस्ट्रोजन, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. अब लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, जब प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो हैव अ पॉजिटिव फीडबैक ऑन द पिट्यूटरी LH एंड FSH सिक्रेशन एज सीन इमीडिएटली प्रायर टू ओवुलेशन.
and contribute to the LH and FSH surge. High levels of progesterone, as seen in the luteal phase, inhibit pituitary and pituitary LH and FSH production. ठीक है, तो फीडबैक जो एक्शन है एल प्रोजेस्ट्रॉन का यहाँ पर वो ऑपोजिट है टू द एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन हाई होता है तो उसका पॉजिटिव फीडबैक है, यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई है तो इसका नेगेटिव फीडबैक है. ये इनहिबिट कर रहा है एलएच को और एफएसएच को, और जहाँ ये लो है तो ये उसको बढ़ा रहा है. एस्ट्रोजन जब लो था तो वो एलएच को भी कम कर देता था. ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन लो है तो वो एलएच को बढ़ा रहा है, एफएसएच को भी बढ़ा रहा है, दोनों को बढ़ा रहा है. ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वाया अकर वाया इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी टू GnRH इन द पिट्यूटरी. तो ये उसकी क्या कर रहा था, GnRH के रिसेप्टर की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था और ये उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है. ओके, negative feedback effects are generated through both decreased GnRH production from the hypothalamus and decreased sensitivity to GnRH in the pituitary. तो जो नेगेटिव इसका फीडबैक आ रहा है वो क्या हो रहा है कि एक तो GnRH के प्रोडक्शन को कम कर रहा है और ऊपर से उसकी सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज कर रहा है. ये प्रोजेस्टेरॉन की बात हो रही है. इट इज़ नोन दैट प्रोजेस्टेरॉन कैन ओनली हैव दीज इफेक्ट्स ऑन द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज आफ्टर प्राइमिंग बाय एस्ट्रोजन. तो इट इज़ नोन दैट प्रोजेस्टेरॉन कैन ओनली हैव these effects on gonadotrophic hormone release after priming by estrogen. यानी कि पहले एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स होंगे, उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट्स होंगे. ओके, कम टू द ओवरी. स्टार्टिंग एट, अभी हमने क्या चीज़ पढ़ लिया, HPO एक्सेस. उसमें आपको एज का पता चला, पी का पता चला, अब हम ओ की बात करने लगे हैं. स्टार्टिंग एट मिनार्की द प्राइमोडियल फॉलिकल्स. अब उस टाइम में जब ऊपर से हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच सिक्रीट कर रहा है, ओवरी क्या कर रहा है. ठीक है, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग एट मिनार्की, जब मिनार्की स्टार्ट होती है पेशेंट में, तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स कॉन्टेनिंग ओसाइट्स arrested at the first prophase step in the meiotic division. जो अरेस्ट हुए हुए हैं फर्स्ट प्रोफेज स्टेप पे इन द मियोटिक डिवीजन. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पर वो अरेस्ट हुए हुए होते हैं, उस टाइम पे क्या मतलब पोजीशन क्या है फॉलिकल्स की. विल स्टार्ट टू एक्टिवेट एंड ग्रो इन अ साइक्लिकल फैशन causing ovulation and subsequent menstruation in the event of non-fertilization. In the course of normal menstrual cycle, the ovary will go through the 3 phases. क्या normal menstrual cycle में ovary के क्या क्या phases आ रही हैं, 3 phases हैं, follicular, ovulatory and luteal. तो याद रखना इसकी 3 phases हैं, लेकिन एंडोमेट्रियम की 2 phases हैं. अब ये देखिए मैकेनिज़्म कैसे है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस एंड दिस यूट्रस है, यूट्रस के बाद ओवरीज, और ओवरीज से क्या रिलीज़ हो रहा है, इधर से स्टार्ट करते हैं. ओवरीज से रिलीज़ हो रहा है लो प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन कम है तो उसका पिट्यूटरी पे पॉजिटिव इफेक्ट है, प्रोजेस्टेरॉन हाई है तो उसका पिट्यूटरी पे नेगेटिव इफेक्ट है. और इसी तरह से यहाँ से बात कर लेते हैं कि LH FSH जो है वो एक्ट कर रहे हैं ओवरी के ऊपर. और LH जब ओवरी से जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा है, जब वो लो है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट है. ठीक है, और जब वो हाई है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है. कहाँ पर इफेक्ट उसका पॉजिटिव आ रहा है, हाइपोथैलेमस के ऊपर. और हमने क्या कहा था कि वो क्या करता है, जो रिसेप्टर्स है उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के. ठीक है, ओके, फॉलिकुलर फेज़ की बात करते हैं. फॉलिकुलर फेज़ में होता क्या है, इनिशियल स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ हार्मोन स्टिमुलेशन. तो स्टार्ट की जो फेजेस हैं वहाँ पर कोई हार्मोन है नहीं है, तब वो डेवलप हो जाएंगे. इसी वजह से अगर आप जहाँ पर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फॉलिकल्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इनिशियल फेजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है हार्मोन से. तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट विल फेल एट, कहाँ पर फेल होती है, प्री एंट्रल स्टेज, एंड द फॉलिकुलर एट्रेजिया विल एंसो इफ़ द पिट्यूटरी हार्मोन्स LH एंड FSH आर एब्सेंट. अगर वो नहीं होंगे तो वो प्री एंट्रल स्टेज पे जाके बंद हो जाएगी बात. अब क्या होगा कि FSH राइज इन द फर्स्ट डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो फर्स्ट डेज के अंदर क्या होता है, FSH बढ़ता है, तो क्योंकि ये फॉलिकुलर फेज़ है.
ये FSH की फेज़ है. This is a follicular phase, this is the FSH phase. When estrogen, progesterone and inhibin levels are low, these all are low. This stimulates a cohort of small antral follicles on the ovary to grow. तो FSH आता है, वो क्या करता है, उस वक्त ना प्रोजेस्ट्रॉन है, ना एस्ट्रोजन है, ना इनहिबिन है, कुछ भी नहीं. FSH आया, उसने ओवरी को क्या किया, ढेर सारे उसके अंदर से फॉलिकल्स को उठाया और उनको ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट किया. विद इन द फॉलिकल्स देयर आर 2 सेल टाइप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ स्टेरॉइड्स. तो क्या होता है कि फॉलिकल के अपने अंदर 2 तरह के सेल्स हैं जिन्होंने स्टेरॉइड्स बनाने हैं, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन बनाना है. ये सेल्स कौन सी हैं, ये थीका सेल्स हैं और ग्रैनुलोसा सेल्स हैं. विच रिस्पॉन्ड टू द, अब ये जो सेल्स हैं ये किसकी बात मानते हैं, ये LH और FSH की बात मानते हैं. ठीक है, रेस्पेक्टिवली मीन्स कि थीका सेल्स LH को ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है और इसी तरह से जो FSH है, जो ग्रैनुलोसा सेल है, वो किसको रिस्पॉन्स कर रहा है, ये रिस्पॉन्स कर रहा है जी, ये किसको रिस्पॉन्स कर रहा है, LH. किसको रिस्पॉन्स, थीका सेल्स के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है, LH. और ग्रैनुलोसा सेल्स पे कौन एक्ट कर रहा है, FSH. ठीक है, तो LH ने क्या किया, स्टिमुलेट किया प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस को. ठीक है, अब बात कहाँ से शुरू हुई, ऊपर से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी से LH और FSH. LH ने आके नीचे एक्ट किया है थीका सेल्स के ऊपर और उनको कहा है कि एंड्रोजन रिलीज़ करें. तो एंड्रोजन कहाँ से आएंगे, LH स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस फ्रॉम द कोलेस्ट्रोल्स विद इन द थीका सेल्स. ठीक है, थीका सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रोल जो है उन्होंने अपना एक बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट किया है और स्टेरॉइड्स बनाने हैं उन्होंने. और कौन से ज़्यादा बनाने हैं, androgens. These androgens are converted into estrogen by the process of aromatization in the granular cells. अब ये जो LH ने थीका सेल से कहा और थीका सेल ने एंड्रोजेंस बनाए, इन एंड्रोजेंस ने जाके कन्वर्ट होना है इनटू द एस्ट्रोजन. किस में जाके कन्वर्ट होना है, ग्रैनुलोसा सेल्स में. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ एरोमेटाइजेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH. अब FSH ने जो है ना ये एरोमेटाइजेशन करवानी है, कहाँ करवानी है, ग्रैनुलोसा सेल्स में करवानी है. और बनना क्या है, फाइनली हमारे पास एस्ट्रोजन बनने हैं. एज द फॉलिकल्स ग्रो एंड एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेस. ठीक है, तो जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करेंगे तो ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो एस्ट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करेंगे. क्या होगा, देयर इज़ नेगेटिव फीडबैक ऑन द पिट्यूटरी टू डिक्रीज FSH सिक्रीशन. तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक किसके ऊपर करेगा, FSH के ऊपर, नॉट LH. LH के ऊपर हमने कहा था कि जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो LH भी बढ़ेगा, लेकिन ये एस्ट्रोजन की बात ये FSH की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक आएगा. दिस एसेस के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करना था, ग्रो कराना था, करवा लिया, बात ख़त्म. ठीक है, उसने कोई फर्दर ओवुलेशन थोड़ी करानी थी, उसने उसके ग्रोथ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी पूरी हो गई, वो ग्रो कर गया. उसके ग्रो करने का क्या 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 साइन था कि एस्ट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होगा. जब एस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पता चल गया कि भाई अब जो जिसको मैं पाल रहा था, जो मेरा बच्चा था, वो मैच्योर हो चुका है. ठीक है, जो सो मुझे आउटपुट चाहिए था वो मुझे मिल रहा है. नाउ माई फंक्शन इज़ ओवर. ओके, दिस असिस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ वन फॉलिकल. तो इसके अब क्या होगा, वन फॉलिकल सिलेक्शन होगी टू कंटिन्यू इन इट्स डेवलपमेंट. ठीक है, तो जो सबसे बड़ा फॉलिकल कैसे सिलेक्शन हुई है, बहरहाल सिलेक्शन ऐसे हुई है कि जब सबसे बड़ा फॉलिकल था उसने जल्दी जल्दी ज़्यादा सिक्रेट कर दिया. उसने बता दिया कि जी हम तो सारे ही ग्रो कर गए हैं. उसको मैसेज चला गया कि जो फॉलिकल्स बनने थे बन गए. ठीक है, तो बाकी अभी चूँकि इतनी उनको भी ज़रूरत थी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ना फर्दर अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन जो सबसे पहले बड़ा हो गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है, उसने जाके मैसेज कन्वे कर दिया कि जी वर्क इज़ डन, तो अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है. अब जो बाकी सब थे वो ख़त्म हो गए, वो जो एक था वो डोमिनेट कर गया. ठीक हो गया, तो इस तरह डोमिनेंट फॉलिकल की सिलेक्शन हो जाती है. इन द ओवरी फॉलिकल हैज़ द मोस्ट एफिशिएंट एरोमेटेज एक्टिविटी एंड हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ द FSH इंड्यूस्ड LH रिसेप्टर्स विल बी द मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव एज FSH लेवल्स ड्रॉप. ठीक है, जब वो लेवल ड्रॉप करके वो सर्वाइव कर गया, वो डोमिनेंट फॉलिकल बन गया. वाइल स्मॉलर फॉलिकल्स विल गो एट्रेसिया. ठीक है, वो सारे सब ख़त्म हो गए. ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जिसके अंदर ज़्यादा एरोमेटेज की एक्टिविटी थी, जिसने ज़्यादा एरोमेटाइजेशन कर ली, जिसने ज़्यादा एस्ट्रोजन बना लिया, उसने मैसेज कन्वे कर लिया कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. ओके,
कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर अदर ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन मीडिएटर्स। अब कुछ और भी मीडिएटर्स हैं जिनका फंक्शन है इसमें, प्लेइंग अ रोल इन द फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दीज इंक्लूड इनहिबिन एंड एक्टिविन। अब इसमें क्या है, इनहिबिन है और एक्टिविन है। इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय द ग्रेन्युलोसा सेल्स विद इन द ओवरीज। इनहिबिन अब कहाँ से बन रहा है, ग्रेन्युलोसा सेल से बन रहा है ओवरीज के अंदर। ये क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करते हैं द फीडबैक टू द पिट्यूटरी टू डाउन रेगुलेट FSH रिलीज। ये पिट्यूटरी को बताता है कि FSH को कम कर दो, क्योंकि ये अब बन गया ना, ठीक है। इनहिबिन भी जाके यही बात कहता है कि ग्रोथ हो गई, एक फॉलिकल डेवलप कर गया, अब मज़ीद FSH की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो अपीयर्स टू एनहांस ऑनगोइंग एंड्रोजन सिंथेसिस, और साथ में ऑनगोइंग जो एंड्रोजन सिंथेसिस है उसको भी बढ़ाता है। एक्टिविन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू इनहिबिन बट हैज़ एन ऑपोजिट एक्शन। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड इन द पिट्यूटरी एंड एक्ट्स टू इंक्रीज FSH बाइंडिंग ऑन द फॉलिकल्स। अब एक और जो हार्मोन है उसका क्या नाम है, पैराक्राइन मीडिएटर या ऑटोक्राइन, जो दूसरी चीज़ें हैं एक्टिविन, वो क्या कर रहा है, वो इसी तरह से है जिस तरह इनहिबिन है, लेकिन इसका एक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ये प्रोड्यूस होता है, ये भी प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेन्युलोसा सेल से, इनहिबिन भी प्रोड्यूस होता है ग्रेन्युलोसा सेल से, ठीक है, इन द पिट्यूटरी एंड एक्ट्स टू इंक्रीज द FSH बाइंडिंग ऑन द फॉलिकल। और ये क्या करेगा कि FSH बाइंडिंग को ज़्यादा करेगा फॉलिकल के ऊपर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 and 2 एक्ट एज पैराक्राइन रेगुलेटर। सर्कुलेटिंग लेवल्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो इनके सर्कुलेटिंग लेवल्स जो हैं वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज नहीं होते, ये भी पैराक्राइन रेगुलेटर्स हैं। बट फॉलिकल फ्लूइड लेवल इंक्रीज टूवर्ड्स ओव्यूलेशन, ठीक है। तो फॉलिकल फ्लूइड लेवल इंक्रीज होता है विद द हाईएस्ट लेवल फाउंड इन द डोमिनेंट फॉलिकल, और ज़्यादा जो डोमिनेंट फॉलिकल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा लेवल होगा मौजूद। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि किस पैप्टिन आर द प्रोटीन्स। अब हमने को कितने पैराक्राइन मीडिएटर्स पढ़े, एक इनहिबिन पढ़ा, एक हमने एक्टिविन पढ़ा, एक हमने इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 and 2 पढ़े। अब हम पढ़ें किस पैप्टिन्स क्या है, ये प्रोटीन्स दैट आर मोर रिसेंटली फाउंड टू प्ले अ रोल इन द रेगुलेशन ऑफ HPO एक्सेस और वाया द मीडिएशन ऑफ द मेटाबॉलिक हार्मोन लेप्टिन्स इफेक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसने क्या करना है, ये प्रोटीन्स हैं जो कि मीडिएट करती है द मेटाबॉलिक हार्मोन लेप्टिन के इफ़ेक्ट को हाइपोथैलेमस के ऊपर। लेप्टिन इज थॉट टू बी की इन द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी प्रोडक्शन, वेट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Mutations in the kisspeptin receptors GPR54 are associated with delayed or absent puberty, ठीक है। अगर उसकी म्यूटेशन जो आ जाएगी इस किस्पेप्टिन के रिसेप्टर्स में जो कि GPR54 में है, तो उसकी वजह से डिलेड प्यूबर्टी भी हो सकती है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, प्रॉबेबली ड्यू टू रिडक्शन इन द लेप्टिन लिंक्ड ट्रिगर्स फॉर द गोनाडोट्रोफिन रिलीज, क्योंकि लेप्टिन जो है वो ट्रिगर करेगा गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ को। हमने क्या पढ़ा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होने के लिए ज़रूरी है, LH-FSH के होने के लिए ज़रूरी है कि जो गोनाडोट्रोफिन्स हैं वो पल्सेटाइल मैनर में रिलीज़ हों, ठीक है। तो इस ये जो पॉइंट है यहाँ पर रोल आता है किस्पेप्टिन्स का, लेप्टिन्स का, ठीक है। ओके, अब आ जाए ओवुलेशन पे। बाय द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज़, अब फॉलिकुलर फेज़ एंड हो गई, विच लास्ट एन एवरेज 14 डेज़ तक तकरीबन ये लास्ट करती है। एंड द डोमिनेंट फॉलिकल हैज़ ग्रोन टू अप्रॉक्सीमेटली 20 mm, तकरीबन जो है वो डोमिनेंट फॉलिकल कितना ग्रो किया, 20 mm तक, ठीक है, 20 mm। एज द फॉलिकल मैच्योर्स FSH इंड्यूसेस LH रिसेप्टर्स ऑन द ग्रेन्युलोसा सेल्स टू कंपनसेट फॉर द लोअर FSH लेवल्स, ठीक है। जैसे फॉलिकल मैच्योर होता है, FSH इंड्यूस करता है LH रिसेप्टर्स को ग्रेन्युलोसा सेल्स के ऊपर टू कंपनसेट फॉर द लोअर FSH लेवल्स, ठीक है। यानी कि अपनी कमी महसूस ना कराने के लिए वो LH के रिसेप्टर्स को जो है ना वो ग्रेन्युलोसा सेल्स के ऊपर इंड्यूस करता है। एंड प्रिपेयर फॉर द सिग्नल फॉर ओवुलेशन, और उसको प्रिपेयर करता है फॉर द ओवुलेशन के सिग्नल्स के लिए। तो दिस इज़ अबाउट production of estrogen increases until it reaches the necessary threshold to exert a positive feedback। तो जो हमने क्या पढ़ा था कि एस्ट्रोजन
ज़्यादा होगा, LH ज़्यादा होगा। LH सर्च के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एस्ट्रोजन को ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है जब तक वो उस थ्रेशोल्ड पॉइंट तक नहीं जाता जब वो LH सर्च क्रिएट कर सके, कि पॉजिटिव फीडबैक उसका इफेक्ट आए ऑन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी दोनों के ऊपर टू कॉज द LH सर्च। ठीक है, दिस अकर्स 24 से 36 आवर्स ड्यूरिंग विच टाइम the LH induced luteinization of the granulosa cells in the dominant follicle causes progesterone to be produced, adding further to the positive feedback for LH secretion and causing a small periovulatory rise in the FSH। और उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा पेरीओवुलेटरी राइज भी आएगा एफएसएच के अंदर। ठीक है, ओके, उसने एफएसएच को भी बढ़ाना है प्रोजेस्टेरॉन ने, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी बनना शुरू हो जाएगा। हम ये कहते हैं ना हमेशा ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन आता है, तो थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरॉन उस टाइम पे बनना शुरू हो जाएगा जब ओवुलेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा फॉलिकल। ओके, अब इसने क्या करना है, LH induced luteinization of the granulosa cells in the dominant follicle and causes progesterone to be produced, adding further to the positive feedback for the LH। क्योंकि हमने कहा था प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, अभी वो कम बन रहा ना, तो वो कम होगा तो उसका पॉजिटिव फीडबैक जाएगा उसके ऊपर कि अब ओव्यूलेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही वो ज़्यादा होगा ना। फॉर LH सिक्रीशन एंड कॉजिंग अ स्मॉल पेरीओवुलेटरी, और साथ चूँकि वो हमने कहा था कि वो LH को भी FSH को भी बढ़ाता है, वो सिर्फ इसको नहीं बढ़ाता, तो थोड़ा सा इंक्रीज उसमें भी आएगा। एंड्रोजन सिंथेसाइज्ड इन द थीका सेल्स। अब एंड्रोजन्स की हम बात कर रहे थे पहले ही कि वो कहाँ बन रहे हैं, सिंथेसाइज्ड इन द थीका सेल्स। उन्होंने क्या किया, ऑल्सो राइज अराउंड द टाइम ऑफ, और वो फिर वो भी बढ़ जाएंगे अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन, एंड दिस इज थॉट टू हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टिमुलेटिंग लिबिडो, ensuring sexual activity is likely to occur at the time of greatest fertility। ठीक है, तो ये इस काम के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ओके, the LH surge is one of the best predictor for the imminent ovulation, and this is the hormone detected in the urine by most over the counter ovulation predictor test, and the LH surge has another function in the stimulating the resumption of the meiosis in the oocyte just prior to its release। तो LH का एक और फंक्शन भी है, एक तो LH सर्ज है, LH सर्ज के साथ इसका क्या फंक्शन है नेक्स्ट, कि ये स्टिमुलेट करे रिजम्पशन ऑफ द मियोसिस को, जो स्टॉप हो गई थी उसको उसने रिज्यूम कर दिया है कि अब बिफोर इट्स ओवुलेशन, कि जब वो रिलीज़ होने से पहले वो अपनी मियोसिस को रिज्यूम कर ले। द फिजिकल ovulation of the oocyte occurs after breakdown of the follicular wall, takes place under the influence of LH, FSH and proteolytic enzymes such as plasminogen activators and prostaglandins। तो किन किन चीज़ों की हेल्प से ये फिज़िकल ओवुलेशन हो पा रही है, ये सारी चार चीज़ें, LH, FSH, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। स्टडीज़ ने क्या बताया कि इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन में रिजल्ट इन फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फिर ओव्यूलेशन भी नहीं होगी। इसी वजह से जो एंसर्स है ना, इनको हम कहते हैं, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ना, तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि हमने क्या अभी पढ़ा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन उस सब कुछ तैयार है, ऊपर से GnRH भी आ गया, LH, FSH भी आ गया, अपने टाइम पे हर किसी ने अपना काम कर दिया। नीचे से थीका सेल्स ने एंड्रोजन्स बना दिए, ग्रेनुलोसा सेल्स ने एस्ट्रोजन बना दिया, फिर इतना ज़्यादा एस्ट्रोजन बना दिया कि मैसेज कन्वे कर दिया कि सब हो गया तैयार, बस कर दो। फिर पैराक्राइन, एंडोक्राइन, जो इनहिबिन, एक्टिविन, वो भी आए, उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया, सब कुछ रेडी है। लेकिन अब उस जो फॉलिकल है, जो मैच्योर फॉलिकल है, उसने अब रप्चर होना है, तो उसके अंदर से एग ने निकलना है। कैसे निकलेगा? जब तक उसकी दीवार नहीं टूटेगी ऊपर से, जब तक फॉलिकल जो है वो की वॉल रप्चर नहीं होगी, तब तक वो नहीं निकल सकता। और उसकी वॉल को रप्चर करने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत है, LH की, FSH की, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, और एक और चीज़ मैंने आपको कौन सी बताई, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स की। तो व्हाट द एंसर्स डू, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे।
जब इनहिबिट कर देंगे तो मे बी वो इस लेवल तक इनहिबिट कर दें कि ओव्यूलेशन ना हो पाए, ठीक है। तो दिस इज़ द, यहाँ इस पॉइंट पे आपको समझ आ जाएगा कि क्या इसका यस नेक्स्ट ये लाइन आ रही है। दस द वुमेन विशिंग टू बिकम प्रेग्नेंट शुड बी एडवाइज टू अवॉइड टेकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसेज इनहिबिटर्स सच एज एस्प्रीन such as aspirin such as aspirin such as aspirin रिमेंबर, जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि APLS का पेशेंट है, एस्पिरिन पहले दे दो, प्रेगनेंसी होने से पहले दे दो, तो लिसन फॉर दोज पीपल कि एस्पिरिन अवॉइड करनी है उन पेशेंट्स में जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, विच मे इनहिबिट oocyte रिलीज। गॉट माई पॉइंट? इसको हम अच्छा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको अपने जहन में बिठा लें। ओके, नेक्स्ट आ गया लुटियल फेज आफ्टर द रिलीज ऑफ oocyte। अच्छा ठीक है, वो उसने भी कुछ नहीं तंग किया, चारों ने मिल के जोर लगाया और oocyte रिलीज़ हो गया भाई। आफ्टर द रिलीज ऑफ oocyte द रिमेनिंग ग्रेनुलोजा एंड थिकर सेल्स ऑन द ओवरी फॉर्म अ कॉर्पस लूटियम। अब आ जाती है बारी कॉर्पस लूटियम की। वो यही तो बेचारा इंतज़ार कर रहा था, तभी तो प्रोजेस्टेरॉन ने ज़ोर लगाया कि भाई थोड़ा बहुत रिलीज़ हुआ और उसने कहा कि भाई ओवुलेशन हो ताकि हम खुल के खेल सकें। अब प्रोजेस्टेरॉन की बारी है। The granulosa cells have the vacuolated appearance and with the accumulated yellow pigment, hence the name CL, जिसे हम कॉर्पस लूटियम कह रहे हैं, येलो बॉडी। द कॉर्पस लूटियम अंडरगोज एक्सटेंसिव वेस्कुलराइजेशन इन ऑर्डर टू सप्लाई ग्रेनुलोसा सेल विद अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर कॉन्टिन्यूड स्टेरॉइडोजेनेसिस, ठीक है। तो अब इसने क्या करना है, इसका रोल ये है कि एक्सटेंसिव वेस्कुलराइजेशन दे और सप्लाई करे ग्रेनुलोसा सेल्स को विद अ थिक सप्लाई, तो ताकि वो स्टेरॉइडोजेनेसिस जो है वो ग्रेनुलोसा सेल में जारी रहे, ठीक है। वो नहीं चाहता कि वो स्टेरॉइडोजेनेसिस रुके। दिस इज एडेड बाय द लोकल प्रोडक्शन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ पर भी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का भी रोल आ गया। ऑनगोइंग पिट्यूटरी LH सिक्रीशन एंड ग्रेनुलोसा सेल एक्टिविटी इंश्योर अ सप्लाई ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच स्टेबलाइजेज द, तो उसके साथ LH जो है वो सिक्रीशन कॉन्टीन्यू है और ग्रेनुलोसा सेल की एक्टिविटी भी कॉन्टीन्यू है और सप्लाई ऑफ प्रोजेस्टेरॉन भी है, विच स्टेबलाइजेज द एंडोमेट्रियम इन द प्रेपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आर एट देयर हाईएस्ट इन द साइकिल ड्यूरिंग द लूटियल फेज। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स कब ज़्यादा होते हैं, जब लूटियल फेज होती है। Progesterone levels are at their highest in the cycle during the luteal phase, and this also has the effect of suppressing FSH and LH secretion to a level that will not produce further follicular growth in the ovary during that cycle. This also has the effect of suppressing FSH and LH secretion to a level that will not produce further follicular growth, ठीक है। जब फॉलिकल ज़्यादा हो जाएगा, उसका लेवल ज़्यादा होगा, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सप्रेस कर रहा है LH-FSH को, कि वो हमने क्या कहा था कि हाईएस्ट जब लेवल उसका ज़्यादा होता है प्रोजेस्टेरॉन का, तो वो सब उसका नेगेटिव इफेक्ट है। एस्ट्रोजन का जब लेवल ज़्यादा होता है उसने LH को ज़्यादा सिक्रीट किया, ठीक है। FSH को उसने बंद कर दिया लेकिन LH को उसने ज़्यादा सिक्रीट किया। प्रोजेस्टेरॉन जब पहले कम था, जब प्री ओवुलेटरी फेज़ में, जब अभी ओवुलेशन नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा प्रोजेस्टेरॉन बना था और उस प्रोजेस्टेरॉन ने जाके उसके इफेक्ट को एनहांस किया था, FSH को भी बढ़ाया था, LH को भी बढ़ाया था। अब जब प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई लेवल में आ चुका है, तो अब इसने इन दोनों को बंद कर दिया कि भाई अब मज़ीद आपकी तो कोई ज़रूरत नहीं रही, तो अब हमने प्रेगनेंसी के लिए चीज़ों को प्रिपेयर करना है। तो दिस इफेक्ट ऑल्सो सप्रेस FSH LH सिक्रीशन टू अ लेवल दैट विल नॉट प्रोड्यूस फर्दर फॉलिकुलर, मतलब कोई और मज़ीद फॉलिकुलर ग्रोथ ना हो, ठीक है, उस एक साइकिल में। द लूटियल फेज लास्ट कितने देर तक रहती है, 14 डेज तक रहती है, विदाउट ग्रेट वेरिएशन, उसमें कोई ग्रेट वेरिएशन नहीं आती। Okay, in the absence of the beta human chorionic gonadotrophin being produced from an implanting embryo, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं करेगा, बीटा HCG नहीं बनेगा। बीटा HCG कहाँ से बनता है, प्लेसेंटा से बनेगा, वो नहीं बनेगा। द कॉर्पस लूटियम विल रिग्रेस इन द प्रोसेस नोन एज, फिर वो किस प्रोसेस के ज़रिए रिग्रेस कर जाएगा, इसकी एब्सेंस में, बाय द प्रोसेस ऑफ ल्यूटियोलाइसिस। The mature corpus luteum is less sensitive to LH,
प्रोड्यूसेस लेस प्रोजेस्टेरॉन एंड विल ग्रेजुअली डिसअपियर फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। तो वो उसके ऊपर LH का इफेक्ट नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएगा उसमें से। द विड्रॉल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हैज़ द इफेक्ट ऑन द यूट्रस ऑफ कॉजिंग शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड दस द मेंस्ट्रुएशन अकर्स। तो क्या हुआ, सब जो हमने एक इतना स्टेज सजाया था प्रेगनेंसी के लिए तो वो सब ख़त्म हो गया। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन फीडिंग बैक to the pituitary cause increased secretion of gonadotropin hormone, particularly FSH. New pre-antral follicles begin to be stimulated and the cycle begins renew, ठीक है। तो रिड्यूस हो गया एक दफ़ा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, फीडबैक टू द पिट्यूटरी कॉज इंक्रीज सिक्रेशन। जब ये सारी चीज़ें कम हो गई तो अब क्या हुआ, फिर दोबारा gonadotropin की सिक्रेशन होना शुरू हो गई है। पहले FSH बढ़ेगा और फिर न्यू प्री एंट्रल फॉलिकल्स जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और ग्रो करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। उसके बाद अब एंडोमेट्रियम को भी थोड़ा सा देख लें। एंडोमेट्रियम हार्मोन चेंजेस अफेक्टेड बाय द HPO एक्सेस ड्यूरिंग द menstrual cycle will occur whether the uterus present or not. वो HPO एक्सेस तो चलता रहेगा। However, the specific secondary changes in the uterine endometrium give the most obvious external signal of the regular cycle. तो जब तक एंडोमेट्रियम नहीं होगी वही जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स आने थे वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो उनके लिए इनका होना भी ज़रूरी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि प्रोलिफरेटिव फेज, द प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम एंटर्स इन द प्रोलिफरेटिव फेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन व्हेन ग्लैंडुलर एंड स्ट्रोमल ग्रोथ बिगिन. The epithelium lining of the endometrial glands changes from a single layer of the columnar cells to the pseudo-stratified epithelium with frequent mitosis, ठीक है। endometrial thickness increases rapidly from the 0.5 mm at menstruation to 3.5 से 5 mm at the end of proliferative phase, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एंडोमेट्रियम थिकनेस एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन कितनी है, 0.5 mm, और फिर वो कितनी हो गई बाय द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज 3.5 से 5 mm। प्रोलिफरेटिव फेज कौन सी थी, ये ओव्यूलेशन पे जाके एंड अप होगी, उसके बाद सेक्रेटरी फेज शुरू हो जाएगी। ओके, तो अब सेक्रेटरी फेज की बात करते हैं। सेक्रेटरी फेज में क्या होगा कि आफ्टर ओव्यूलेशन जनरली अराउंड 14 डे जो होती है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में, देयर इज़ अ पीरियड ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सिक्रेटरी एक्टिविटी। तो उसमें क्या होगा, फॉलोइंग द LH सर्च द एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड सेलुलर प्रोलिफरेशन इज़ इनहिबिटेड। जो सेलुलर प्रोलिफरेशन हो रही थी एस्ट्रोजन की वजह से वो अब ख़त्म हो गई। अब क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियल थिकनिंग डज नॉट इंक्रीज एनी फर्दर। अब थिकनिंग उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। हाउ एवर द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स विल बिकम मोर टॉर्शियस। अब वो जो ग्लैंड्स बन गए वो मज़ीद टॉर्शियस होंगे और स्पायरल आर्टरीज विल ग्रो एंड फ्लूइड इज सिक्रेटेड इनटू द ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है। एंड यानी कि ये सेक्रेटरी चेंजेस इन्हें हम कह रहे हैं कि ये आ रही हैं, इसके अंदर सेक्रेटरी फेज है, ठीक है। इनटू द and into the uterine lumen. Later in the secretory phase, progesterone induces the formation of a temporary layer known as decidua. तो प्रोजेस्ट्रॉन ने क्या किया, एक टेम्परेरी लेयर बनाई है जिसको हम कह रहे हैं decidua in the endometrial stroma. Histologically this is seen as occurring around the blood vessels. तो ये blood vessels के अराउंड आपको नजर आएगा। Stromal cells show increased mitotic activity, nuclear enlargement and generation of a basement membrane. एक apical जो membrane projection है, apical membrane projections of the endometrial epithelial cells known as pinopods appear after the day 21 से 22 and appear to be progesterone dependent stage in making the endometrium receptive for the embryo transplant implantation, ठीक है। अच्छा, ये साइकिल का ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है कि LH कब बढ़ता है, एस्ट्रोजन कब बढ़ता है। देखें अब ये पर्पल लाइन जो है वो सबसे पहले FSH को देखें, क्योंकि सबसे पहले FSH पहले ज़्यादा हो रहा है और देखें फिर कम हो जाता है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता जब फॉलिकल ग्रो करना शुरू हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हमने कहा था कि जब ओव्यूलेशन, ये दरमियान में जो डॉटेड लाइन है सेकंड नंबर वाली, ये ओव्यूलेशन को शो कर रही है। ओव्यूलेशन के अराउंड मैंने आपसे कहा था कि FSH बढ़ेगा क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसकी वजह से FSH भी बढ़ेगा और LH तो बढ़ेगा ही।
अच्छा, नेक्स्ट अब आप देख लें कि FSH ने एस्ट्रोजन को पहले बनाया था। अब ये पर्पल लाइन जो है वो एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर कम होना शुरू हो गया। तो मैक्सिमम एस्ट्रोजन ओवुलेशन के टाइम पे हुआ। उसके बाद फिर ये आपके पास आ जाती है पिंक या रेड लाइन LH की, जो शुरू में इतना नहीं बढ़ता क्योंकि इसका इतना रोल नहीं होता, फिर ये एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन जो है वो बढ़ता है, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर डाउन हो जाता है। तो जो चीज़ सिर्फ दरमियान में बढ़ रही है, ओवुलेशन के टाइम में बढ़ी है, दैट इज़ LH सर्ज। अब प्रोजेस्ट्रॉन फर्स्ट फेज़ ऑफ द साइकिल में नहीं होता, ये ग्रीन लाइन प्रोजेस्ट्रॉन को शो कर रही है, और फिर ओवुलेशन के साथ ये बढ़ना शुरू होता है। देखिए हमने क्या कहा था, जैसे ही प्री ओवुलेटरी टाइम पे ही थोड़ा बहुत प्रोजेस्ट्रॉन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, और फिर वो पीक पे जाता है अपनी लूटियल फेज़ में, यानी कि नेक्स्ट फेज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और फिर प्रेगनेंसी जब नहीं होती तो फिर ये सारे ही हार्मोन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब ये देखें, ये स्टार्ट में मेंस्ट्रुएशन है, फिर प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम है, फिर सिक्रेटरी, और फिर दोबारा मेंस्ट्रुएशन आ गई। तो जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हुई थी तो साथ ही फॉलिकुलर ग्रोथ शुरू हो गई थी। फिर ओसाइट रिलीज़ हुआ, ओवुलेशन हुई, फिर कॉर्पस लूटियम बना, और फिर कॉर्पस लूटियम भी रिग्रेस कर गया, ठीक है। ये पिक्चर्स हैं तो ये आप देख लीजिएगा प्लीज़। अब मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं ज़रा जनरली सी। जनरल ये है कि डे 1 इज़ शेडिंग ऑफ द डेड एंडोमेट्रियम, सीजेस एज द एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स, विच नॉर्मली हैपन्स बाय डे 5 to 6 ऑफ साइकिल। इन 5 to 6 ऑफ साइकिल के ऊपर वो एंडोमेट्रियम की पहले डे 1 पे शेडिंग होती है, और फिर 5 to 6 डे ऑफ साइकिल पे उसकी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। और इमीडिएटली प्रायर टू द मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि 3 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम कैन बी सीन। तो 3 लेयर्स बन जाती हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं? बेजालिस है, is the lower 25% of the endometrium, which will remain throughout the menstruation and show few changes during the menstrual cycle. उसके बाद फिर मिड पोर्शन है एंडोमेट्रियम का, जिसको हम स्ट्रेटम स्पॉन्जियोजम कह रहे हैं, विद एडिमेटस स्ट्रोमा एंड एग्जॉस्टेड ग्लैंड्स। और उसके बाद जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर है, अपर मोस्ट 25% जो है उसको हम क्या कह रहे हैं? दिस इज़ द स्ट्रेटम कम्पैक्टम, ठीक है, सब स्ट्रेटम कम्पैक्टम। दरमियान में कहता है स्ट्रेटम स्पॉन्जियोजम, और सबसे लास्ट पे शुरू में कहता है बेजालिस। अच्छा, तो स्ट्रेटम कम्पैक्टम क्या है? प्रोमिनेंट सेडुलाइज्ड स्ट्रोमल सेल्स हैं, ठीक है, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हुए हैं। अगर नहीं होगी तो फॉल हो जाएगा। द फॉल इन द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अप्रॉक्सीमेटली 14 days आफ्टर द ओव्यूलेशन लीड्स टू द लॉस ऑफ टिश्यू फ्लूइड। और उसके बाद क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। जो स्पायरल आर्टरीज बनी थी, आर्ट्रियोल्स बनी थी, उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, फिर इस्कीमिया होगा, और दिस रिजल्ट्स इन द टिश्यू ब्रेक डाउन एंड लॉस ऑफ अपर लेयर along the bleeding from the fragments of the remaining arterioles seen in as menstrual bleeding. Enhanced fibrinolysis reduces clotting, यानी कि जो menstrual blood है वो क्लॉट नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिब्रिनोलाइसिस होती है कि वो ब्लड क्लॉट नहीं होता। वैसे भी यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑन द एंडोमेट्रियम कैन बी reproduced artificially, फॉर एग्जाम्पल इन पेशेंट्स टेकिंग कम्बाइंड। अच्छा, तो एंडोमेट्रियम के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी का फंक्शन तो ख़त्म हो जाता है ना जब आप COCP देते हैं, स्पेशली COCP में, HRT में नहीं, COCP देते हैं, तो ओवरी का फंक्शन तो कम हो जाता है, लेकिन द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑन द एंडोमेट्रियम कैन बी रिप्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। फॉर एग्जाम्पल इन पेशेंट्स टेकिंग, जो कि ले रहे होते हैं कंबाइन हार्मोन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसमें भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, तो ओवरी के ऊपर एंडोमेट्रियम के ऊपर उनका इफेक्ट होता है, ठीक है। और हु एक्सपीरियंस विदड्रॉल ब्लीड ड्यूरिंग देयर पिल फ्री, जब उनका पिल आप विदड्रॉ करेंगे तो वो ब्लीड करेंगी। Vaginal bleeding will cease after 5 to 10 days as arterioles vasoconstrict and the endometrium begins to regenerate. तो arterioles जो vasoconstrict कर जाती हैं और regeneration होती है एंडोमेट्रियम की। Hemostasis in the uterine, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि hemostasis जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर वो नॉर्मल hemostasis नहीं होती एल्सवेयर जैसे कि बाकी बॉडी में। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन एंड फाइब्रोसिस, यहाँ पर कोई क्लॉट नहीं बनता
और कोई फाइब्रोसिस नहीं होती, अदरवाइज़ तो वो सारा बिल्कुल ही वो जो ब्लड सारा निकलेगा वो क्लॉटेड हो जाएगा, तो एंडोमेट्रियम तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी सारी, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होता। द एंडोक्राइन influences in the endometrium are clear. The paracrine mediators are less so. Prostaglandin F2 alpha, endothelin 1 and platelet activating factor are the vasoconstrictors. इसमें क्या क्या है, एक वेजोकंस्ट्रिक्टर्स आपने पढ़ने हैं कि वेजोकंस्ट्रिक्टर्स कौन कौन से हैं, ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये वेजोकंस्ट्रिक्टर्स हैं, और फिर वेजोडाइलेटिंग एजेंट्स कौन से हैं। वेजोकंस्ट्रिक्टर्स ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो वेजोकंस्ट्रिक्टर्स कौन से हैं, F2 अल्फ़ा है, एंडोथेलिन 1 है और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। ये प्रोड्यूस होते हैं विद इन द एंडोमेट्रियम एंड थॉट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द वेजल कंस्ट्रिक्शन बोथ इनिशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो एक तो उसको इनिशिएट भी यही करते हैं और उसके बाद फिर कंट्रोल भी यही करते हैं, ठीक है। तो दीज दे मे बी बैलेंस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ वेजोडाइलेटर, जो कि कौन से हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये वेजोकंस्ट्रिक्टर्स की वजह से ही पेन भी होती है, ठीक है। दे मे बी बैलेंस्ड। अच्छा, बैलेंस क्या हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, तो ये पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कौन से कंस्ट्रिक्टर्स हैं, कौन से डायलेटर्स हैं और कौन पेन करता है, यही पेन करते हैं वेजोकंस्ट्रिक्टर्स, ठीक है। तो डायलेटर्स कौन कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड विच आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोमेट्रियम। Recent research has shown that the progesterone withdrawal increases endometrial prostaglandin synthesis and decreases prostaglandin metabolism। तो कहते हैं कि जो प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल है उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बनना शुरू हो जाती है, सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है और उसकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम जो हैं और कीमोकाइंस आर इन्वॉल्व इन द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। दिस इज लाइकली टू बी द टारगेट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हैवी एंड पेनफुल पीरियड्स। तो पेन को भी स्टॉप करेंगे और ब्लीडिंग को भी कम करेंगे। ओके, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि एंडोमेट्रियल रिपेयर इन्वॉल्व्स बोथ ग्लैंडुलर एंड स्ट्रोमल रीजनरेशन। तो जब एंडोमेट्रियम रिपेयर होगी, रीजनरेट करेगी, तो फिर ग्लैंडुलर भी रीजनरेट होगी और स्ट्रोमल भी रीजनरेशन होगी और एंजियोजेनेसिस भी होगी टू constitute the endometrial vasculature. Vascular endometrial growth factor and fibroblast growth factor are found within the endometrium and both are powerful angiogenic agents. Epidermal growth factor appears to be responsible for the mediation of estrogen induced glandular and stromal regeneration, ठीक है। तो ये एंजियोजेनिक फैक्टर्स हैं, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फिर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है इसने ग्लैंड्स की और स्ट्रोमा की रीजनरेशन करवानी है, ठीक है। समझ आ रही है ना कि वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ने और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ने वैस्कुलेचर ग्रोथ करनी है और एंडोमेट्रियल ग्रोथ फैक्टर ने ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल रीजनरेशन करनी है। अदर ग्रोथ फैक्टर्स सच एज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एंड इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन्स में ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। होपफुली आपको अच्छा सा समझ आ गया और याद रखिएगा कि कैसे हाइपोथैलेमस का एक ही काम है कि उसने GnRH देना है, ठीक है। पिट्यूटरी के काम क्या है, उसने LHFSH देना है। फिर नीचे से ओवरी का फंक्शन क्या है कि उसने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करने हैं और एंडोमेट्रियम ने अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द प्रेगनेंसी। जब नहीं होती प्रिपेयर तो फाइनली मेंस्ट्रुएशन होती है। और विच आर द हार्मोन्स फॉर द फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन। विच आर द हार्मोन्स दैट आर फॉर द ओव्यूलेशन, एस्ट्रोजन है जिसने ज़्यादा होना है, प्रोजेस्टेरॉन भी है जिसने कम होने की वजह से उसको LH को बढ़ाना है और एस्ट्रोजन ने ज़्यादा होने की वजह से LH को बढ़ाना है और ओव्यूलेशन होनी है, ठीक है। और चूँकि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है तो वो स्टिमुलेट करता है, तो कम होने की वजह से स्टिमुलेट करता है, तो वो सिर्फ LH को नहीं करता, FSH को भी करता है। तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन और FSH थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मौजूद होते हैं और प्रोजेस्टेरॉन और FSH थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मौजूद होते हैं और एस्ट्रोजन और LH जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। अब क्या हुआ लूटियल फेज़ में प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज़्यादा है, FSH भी कम है, LH भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और एस्ट्रोजन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर फ्लो चार्ट में भी दिखाया था। तो लूटियल फेज़ इज़ अ phase of progesterone basically and follicular phase is the phase of estrogen and FSH। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, इसी के ऊपर बेस करता है, इसीलिए जो COCPs हैं उनमें
कम अमाउंट होती है एस्ट्रोजन की, ठीक है, टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा हम देंगे तो वो इनहिबिट नहीं करेगा, ज़्यादा एस्ट्रोजन तो एलएच को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसीलिए एचआरटी की डोज में हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एचआरटी में कितनी डोज है और सीओसीपी में कितनी डोज है, सीओसीपी में कम है या एचआरटी में कम है, ठीक है। तो सीओसीपी में कम है क्योंकि हमने लो लेवल मेंटेन करना है बॉडी में ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने के लिए, और एचआरटी में ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए वो एज अ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होती, वो सिर्फ एचआरटी होती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, उसमें खैर हार्मोन्स का भी डिफरेंस आ जाता है कि उसमें एस्ट्रोजन ओ टाइप का है, उसमें एस्ट्रोजन ओ टाइप का होता है, तो कभी कभी डिफरेंट भी होता है, कभी सेम भी होता है। तो लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो इसकी डोज का है, ठीक है। सीओसीपी में कम है, उसमें ज़्यादा है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो सीओसीपी का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियम के ऊपर इफेक्ट करता है, इसीलिए जब वो विड्रॉ करते हैं तो फिर एंडोमेट्रियम जो है वो ब्लीड करती है, ठीक है। ओके, सो गुड लक।